فضلك رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین۔ تمام قسم کی تعریف وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو ہستی اقدس مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا، جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت و رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ دوستو، میں نے آپ لوگوں کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ محمد کی آخری آیت رکھی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، کہ اگر تم روگردانی کرو گے تو ہم تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ ایسی قوم کو لائیں گے جو تمہاری جیسی نہ ہوگی۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کی غافل نسلوں کو متنبہ کیا ہے۔ امت محمدیہ کی وہ غافل نسلیں جو مقصد حیات سے غافل ہو جائیں، وہ غافل نسلیں جو زندگی کے مقصد سے غافل ہو جائیں، جو رب کے دین سے دور ہو جائیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے حقوق اور اس کے تقاضوں کو فراموش کر بیٹھے۔ اللہ نے اس آیت میں ان نسلوں کو متنبہ کیا کہ بیدار ہو جائیں اور رب کی دین کی طرف لوٹیں، ورنہ اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ ان لوگوں کے حق میں شکل میں بھی آ سکتی ہے کہ اللہ ان کو صفحہ ہستی سے ختم کر کے ان کی جگہ ایسی قوموں کو لائے گا، ایسی نسلوں کو لائے گا جو ان جیسی نہ ہوں گی، جو ان جیسی نہ ہوں گی۔ حضرات، مجھے جو موضوع ملا ہے دور حاضر میں مسلمانوں کا کیا کردار ہونا چاہیے، میں بھرپور کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں دوستوں اپنے موضوع کا حق ادا کر سکوں۔ دیکھیے، ہندوستان میں دوستوں جو حالات ہیں مسلمانوں کے انتہائی نازک ترین دوستوں حالات سے گزر رہے ہیں۔ یہ حالات ہمارے لیے اپنے اندر بہت بڑا پیغام رکھتے ہیں۔ دوستوں، ہندوستان میں آپ سوچئے، غور و فکر کیجئے کہ ہندوستان کا مسلمان آج انتہائی نازک موڑ پہ کیوں کھڑا ہے۔ آج ہم اس ہندوستان میں ذلیل و رسوا کیوں ہیں، کیوں ہم زوال سے دو چار ہیں؟ سوچئے آپ لوگ، اور جب ہم سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو غور و فکر کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارا زوال، ہمارا یہ مطلب پستی، ہمارے دشمن، ان کی سازشیں، ان کے منصوبے، ان کی تدبیریں، وہ اپنی جگہ پر ہمارے زوال کا دوستو اول اور بنیادی سبب ہم خود ہیں۔ ہماری دین سے دوری ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حقوق سے فراموشی ہے، رب العالمین سے بغاوت، یہ ہمارے دوستو زوال کا اصل اور بنیادی سبب ہے۔ دیکھیے، حالات دوستو اللہ رب العالمین کا قانون ہے کہ میں حالات کو تمہارے اعمال کے مطابق کر دیتا ہوں۔ آپ غزوہ بدر کو دیکھیے، مسلمانوں کی دوستو جیتی ہوئی جنگ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلی، 70 صحابہ شہید ہوئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا گیا۔ جب صحابہ نے پوچھا اولما اصابتکم مصیبہ قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا قلتم ان ھذا، کہ جب تم سوال کر رہے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایسا کیوں ہوا، جیتی ہوئی جنگ ہمارے ہاتھ سے کیوں نکلی ہے، ہمارے ساتھی کیوں شہید ہوئے، اتنا نقصان کیوں اٹھانا پڑا ہے، تب رب العالمین نے جواب دیا ہے کہ حالات کو میں تمہارے اعمال کے مطابق کرتا ہوں۔ کبھی قل ھو من عند انفسکم، اے نبی آپ ان کو جواب کیوں نہیں دیتے کہ وہ تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ نبی نے کچھ صحابہ کو، ایک آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، نبی نے کچھ صحابہ کو ایک درے پر مقرر کیا تھا اور کہا تھا جب تک میرا دوسرا حکم نہ آ جائے تمہیں یہاں سے ہٹنا نہیں ہے۔ بس اس نے حکم رسول کی نافرمانی کی وجہ سے رب نے کہا یہ شکست کا منہ تمہیں دیکھنا پڑا ہے، یہ جو نقصان اٹھانا پڑا ہے حکم رسول کی نافرمانی کی وجہ سے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے دوستو کہ حالات کو رب العالمین ہمارے اعمال کے تابع کرتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تبایعتم بالعین ورضیتم بالذر واخذتم اذناب البقر وترکتم الجہاد فی سبیل اللہ، کہ جب تم اینا کی بیع کرنے لگو، اینا ایک حرام بزنس ہے جو لے دے کے آخر میں سود سے جڑتا ہے، یوں سمجھ لیجیے سود کی ایک شکل ہے۔ فرمایا جب تم اینا کی بیع کرنے لگو اور تم دنیا کو سب کچھ سمجھ کر آخرت کو بلا بیٹھو، دنیا میں تمہاری رٹ یہ ہو کہ میرے بیل، میری کھیتیاں، میری جائیداد سب کچھ تم دنیا کو سمجھ بیٹھو، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، دنیا کو سب کچھ سمجھ کر اللہ کے راستے میں لڑنا بھی چھوڑ دو، صلی اللہ علیکم ذلہ، ایسی ذلت کی مار اللہ تمہیں مارے گا، لا ينزع عنکم، اس ذلت سے نکلنا تمہارا دشوار ہو جائے گا، حتی ترجعوا الی دینکم، یہاں تک کہ تم رب کے دین کی طرف لوٹ آؤ۔ یہی دوستو ذلت سے رب العالمین نے فرمایا
نکلنے کا راستہ ہے, یہی ذلت سے نکلنے کا. آپ کا تصور جو ہے غلط ہے کہ حکومت ہمارے اوپر جو حالات ہیں حکومت نے بنایا ہے, حکومت میں چند فرقہ پرست جو لوگ ہیں, مسلمانوں کے جو دشمن ہیں, انہوں نے یہ حالات مسلمانوں کے حق میں بنائے. مسلمانوں اپنے سوچنے کا نقطہ نظر آپ بدلیے. عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں چھوٹا سا زلزلہ آیا, ہمیں عمر بن عبدالعزیز کا یہ واقعہ بتاتا ہے کہ ہمیں سوچنے کا نقطہ نظر کیا ہونا چاہیے. چھوٹا سا زلزلہ آیا, عمر بن عبدالعزیز نے گورنروں کو خط لکھا کہ یہ زلزلہ اللہ کے غضب کی دلیل ہے, یہ زلزلہ اللہ کے غصے کی دلیل ہے, یہ زلزلہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آیا ہے. تمام گورنروں کو خط لکھ کے کہا کہ تم اپنی رعایا کے ساتھ, اپنی قوم کے ساتھ اور رب العالمین کی دربار میں اللہ کے سامنے رو گڑ گڑاؤ, اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے گنہگار ہونے کا اعتراف کرو اور رب سے معافی مانگو. یہ زلزلہ اللہ کے غضب کی دلیل ہے. مسلمانوں, عمر بن عبدالعزیز کے سوچنے کا جو نقطہ نظر, آج ہم لوگوں کا وہی نقطہ نظر ہونا چاہیے کہ حکومت ہمیں نہیں ستا رہی ہے, ہمیں ہمارے اعمال ستا رہے ہیں. حکومت, ہاں اللہ کا یہ قانون ہے کہ جب تمہارے اعمال بگڑیں گے, جب تم میرے باغی بنو گے, جب تم نافرمانیوں میں اڑ جاؤ گے اور توبہ نہیں کرو گے, تو پھر میری پکڑ اس شکل میں بھی آئے گی کہ میں ظالم حکمرانوں کو تم پر مسلط کرتا ہوں. چند مسلمان حضرت انس کے پاس آتے ہیں اور حجاج بن یوسف کے ظلم و ستم کی شکایت کرتے ہیں. کیا کہا تھا حضرت انس نے؟ ما جعل الحجاج الا بذنوبنا, حجاج تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے, حجاج تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے. حجاج سے بچنا چاہتے ہو, حجاج سے نجات چاہتے ہو تو اپنے گناہوں پر معافی مانگو. قرآن پڑھیے, رب العالمین نے بنو اسرائیل پر, دیکھیے بنو اسرائیل کی سورت اس حقیقی حادثے کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ بنو اسرائیل جب بگڑے اور رب کے باغی بنے, اللہ نے انہیں سبق سکھانے کے لیے, اللہ نے انہیں بیدار کرنے کے لیے بخت نصر کو ان پر مسلط کیا. بخت نصر غیر مسلم, ایک کافر بادشاہ, اور جن پر مسلط ہوا وہ مسلمان تھے. یہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ دوستو ہمارے گناہوں کی سزا اس شکل میں بھی دیتا ہے کہ ظالم بادشاہوں کو ہم پر مسلط کرتا ہے. ظالم بادشاہوں, ظالم حکمرانوں کے ذریعے رب العالمین ہمیں بیدار کرنے کی کوشش کرتا ہے. مسلمانوں, وقت ہے, ضرورت اس بات کا تقاضا کر رہی ہے دوستو, حالات اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ ہم اجتماعی شکل میں رب العالمین کی طرف آئے, رب کی بارگاہ میں آئے اور ہر آدمی اپنے گنہگار ہونے کا احساس کرے, ہر آدمی اپنے خطاکار ہونے کا احساس کر کے رب کے سامنے دوستو اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے رب سے معافی مانگے. یہی شکل ہے, یہی سے امید کی کرن پیدا ہو سکتی ہے اور یہی سے وہ روشنی نکل سکتی ہے جس سے حالات کی ظلمتیں دور ہو سکتی ہیں. اب بھی دوستو ہم بیدار نہ ہوئے, اب بھی ان حالات میں بھی اگر ہم بیدار نہ ہوئے تو دوستو یاد رکھیے رب العالمین کا جو قانون ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ, یہ اپنا کام کرنے کے لیے دوستو تیار ہے, یہ اپنا اللہ کا یہ اصول اپنا کام کرنے کے لیے تیار ہے. یقین نہ آئے تو اسپین کی تاریخ اٹھا کر آپ تک دیکھ لیجئے. سن 90 ہجری میں اسپین کے اندر اسلام داخل ہوا, 800 سالہ مسلمانوں نے حکومت کی ہے. جب وہ برائیوں پڑے اور رب کے باغی بنے, دینی تعلیمات سے دور ہو کر انہوں نے زندگی گزاری, وہ نافرمانیوں میں پڑے, اور جب انہیں ان کے گناہوں کا احساس نہ ہوا تو رب العالمین نے ظالم بادشاہوں کو مسلط کر کے انہیں فنا کیا, وہاں سے ختم کیا رب العالمین نے. آج دیکھیے اسپین میں مسلمانوں کی حویلیاں ملیں گی, مسلمانوں کی وہ عالیشان عمارتیں ملیں گی جہاں مسلمانوں نے اپنے دور حکومت میں بنائی تھی. نہیں ملیں گے تو آپ کو مسلمان نہیں ملیں گے. ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فنا کیا انہیں, وہاں سے ختم کیا. آج عیسائیوں کی حکومت ہے, غیر مسلموں کی حکومت ہے. یہ رب کا قانون ہے مسلمانوں, یہ رب کا قانون ہے کہ جب تم نافرمانیوں سے باز نہیں آؤ گے تو میں ایسی قوموں, ایسی نسلوں کو ختم کرتا ہوں, ان کی جگہ دوسری قوموں اور دوسری نسلوں کو لاتا ہوں. ہم بھی بیدار نہ ہوئے, ہو سکتا ہے اسپین والی تاریخ یہاں بھی دہرائی جائے. یہاں بھی لال قلعہ بچے گا, تاج محل بچے گا, لیکن لال محل اور تاج محل کو, لال قلعہ اور تاج محل کو آباد کرنے والی ہو سکتا ہے وہ قوم نہ رہے, ہو سکتا ہے وہ قوم نہ رہے. مسلمانوں, ضرورت اس بات کی کہ ہم بیدار ہو جائیں, ضرورت اس بات کی کہ اجتماعی شکل میں رب العالمین کے دین کی طرف رجوع کریں, اپنے گنہگار ہونے کا اعتراف کریں. مسلمانوں, جب قومیں مشکل حالات میں پھنستی ہیں, یہی دوستو ایک راستہ ہے, یہی ایک سبیل ہے جو مسلمانوں کی دوستو کشتی کو پار لگا سکتی ہے, جو مسلمانوں کو مشکل حالات سے نکال سکتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب بنو اسرائیل مشکل حالات میں پھنسے, موسیٰ علیہ السلام نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا, یا قوم استعینوا باللہ, یا قوم استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ
आकिबतु लिलमुत्तकीन, आए मेरी कौम के लोगों, मैं देख रहा हूं कि तुम मुश्किलों में हो, जालिम तुम्हारे ऊपर जुल्म कर रहा है, हवाएं मुखालिफ सिमत की चल रही है, मैं सब कुछ देख रहा हूं। इन हालात में तुम्हें नसीहत करके कहता हूं, लौटो रब की तरफ और रब्बानी हो जाओ, रब के सामने अपने गुनाहगार होने का एतराफ करो, अल्लाह के सामने रो गिड़गिड़ाओ, अल्लाह से मदद मांगो। वस्बिरू, जो भी हालात है रब्बुल आलमीन, इन हालात पर सब्र करो। इन्नल अर्ज़ लिल्लाह, ये जमीन अल्लाह की है, यूरिसुहा मन यशाउ मिन इबादी, इस जमीन का वारिस अल्लाह अपने बंदों में जिसे चाहता है बनाता है। वल आकिबतु लिलमुत्तकीन, हालात बिगड़ेंगे, हवाएं मुखालिफ सिमत की चलेंगी, लेकिन अंजाम हमेशा मुत्तकियों के हक में हुआ करता है। मुसलमानों, वक्त बहुत कम है, बातों को लपेटते हुए मैं आप लोगों को आपका किरदार बताऊं। इन हालात में देखिए, जहां हम हुकूमतों पे भरोसा करते हैं, मुसलमान जब इलेक्शन होता है, मुसलमान दुआएं करते हैं, रब्बुल आलमीन से दुआएं करते हैं। जो कभी मस्जिद में ना आया वो भी दुआ करता है, काश वो पार्टी जीत जाए, काश वो नेता जीत जाए। मुसलमान किन पे भरोसा कर बेटा? मुसलमानों, तुम्हारी असल ताकत तुम्हारा दीन है, तुम्हारा असल सरमाया तुम्हारा दीन है। मुसलमानों, इस उम्मत मुस्लिमा की इज्जत और सरबलंदी की दोस्तों असल जो सरमाया है वो आपका दीन है, वो आपका ईमान है। काश हमने हजरत उमर के इन जुमलों को याद रखा होता कि कुन्ना अज़ल्ला उम्मा, कुन्ना अज़ल्ला उम्मा, कि हम एक जलील तरीन कौम थे, हम एक हकीर कौम थे। फ़अज़्ज़लल्लाहु बिल इस्लाम, हमें जो इज्जत मिली है, कैसर और किसरा को जो हमने फतेह किया, उनके खजानों के जो मालिक बन बैठे हैं, ये इज्जत सिर्फ इस्लाम की वजह से मिली है। वमा मुब्तगिल इज्जत बिदूनिही, आए लोगों, हुकूमतें हमारी इज्जत और सरबलंदी का सरमाया नहीं है, हुकूमतें हमारी ताकत नहीं है, हमारी इज्जत और सरबलंदी दीन में है, दीन इस्लाम में है। ईमान को दोस्तों मजबूती के साथ थामे रहो। का इस्लाम को छोड़कर किसी और रास्ते से कोई इज्जत तलाश करने की कोशिश करता है, अज़ल्लल्लाह, अल्लाह उसे ज़लील और रुस्वा कर देता है, अल्लाह उसे ज़लील और रुस्वा करता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना उम्मती जुइलत आफियतुहा व सयुसीबु आखिरहा बलाउन व उमूरुन तुनकिरूनहा फमन अहब्बा अन युज़हज़ा अनिन नार व युदखलल जन्ना फलतातिही मनियतुहु व हुवा युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वलयाति इलन नास अल्लज़ी युहिब्बु अन युता अलैहि। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमानों, जब हालात ना मुआफिक हो जाए, ना मुसाइद हालात में, ना गुफ्ताबा हालात में, चाहे हालात कितने कमजोर और कितने खराब क्यों हो जाए, उन हालात में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया व आखिरत की कामयाबी चाहते हो तो तुम्हारी कोशिश होनी चाहिए कि मरते वक्त तुम्हारा रब्बुल आलमीन पर ईमान हो, रब पर तुम्हारा ईमान हो, आखिरत पर तुम्हारा ईमान हो। वलियाति इलन नास अल्लज़ी युहिब्बु अन युता अलैहि, और अल्लाह का हक अदा करने के साथ साथ अल्लाह की मखलूक के साथ भी तुम्हारा सलूक अच्छा हो, अल्लाह की मखलूक के साथ भी तुम्हारा रवैया अच्छा हो। यह हदीस हमें इस बात की तालीम दे रही है कि मुसलमानों, तुम्हारी असल ताकत तुम्हारा दीन है, तुम्हारा असल सरमाया तुम्हारा ईमान है, तुम्हारी असल ताकत तुम्हारे सजदे हैं, तुम्हारी रियाजतें हैं, तुम्हारी नमाज है, तुम्हारा जिक्र है, तुम्हारे कुरान की तिलावतें हैं। दीन और ईमान महफूज है, हमारा सब कुछ लुट जाए दोस्तों कोई परवाह नहीं, बस दीन और ईमान की दोस्तों हिफाजत की फिक्र कीजिए। एक और चीज दोस्तों, अंदेशे हैं कि पता नहीं हालात किस रुख में जाएंगे। मुसलमान मुख्तलिफ अंदेशों का इज़हार कर रहे हैं, पता नहीं मुस्तकबिल में मुसलमानों को किन हालात से गुजरना पड़ेगा। हुकूमत ने दोस्तों फिरका परस्त लोग हैं, मुसलमानों के दुश्मन बैठे हुए हैं, मुसलमान डर डर की जिंदगी गुजारे। मुसलमानों, इन हालात में कुरान एक उसूल पेश करता है, कुरान आपको वो रास्ता बताता है कि नफरत के माहौल में जीना है तो कैसे। मुसलमानों, इन हालात में आला अखलाक के हामिल बन जाओ, आला किरदार के हामिल बन जाओ। इस वक्त ये हालात ऐसे हैं, या नफरतों का जवाब आप मोहब्बत से दीजिए और वो किरदार अपना लीजिए जो किरदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार था, जिस किरदार से आपने दुश्मनों के दिलों को जीता, जिस अखलाक से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मनों की दुश्मनी को ज़ेब किया, जिससे आपने वक्त के हाकिमों, वक्त के महकूमों को अपने मातियत किया। जरूरत है इन हालात में मुसलमान इस किरदार को अपनाए, मुसलमान इस अखलाक को अपना ले। आप यह किरदार अपनाएंगे तो क्या होगा? कुरान कहता है, वला तस्तविल हसनतु वला सय्या इदफा बिल्लती ही अहसन फइदल्लती बैनका व बैनहु अदावा कान्नहु वलियुन हमीम। कुरान कहता है कि कभी अच्छाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती। मुसलमानों, कुरान आपसे कहता है कि बुराइयों का जवाब अच्छाइयों से दो। जो तुम्हारी राहों में कांटे बिछाते हैं तुम उनकी राहों में फूल बरसाओ, जो तुम्हें गालियां देते हैं तुम उन्हें दुआएं दो, जो तुमसे सख्त कलामी करते हैं तुम नरम गुफ्तगू करो, नरम कलामी से बाद में तुम लोग नरम रवैया अपना उनसे। ऐसा होगा तो क्या होगा?
फैज़ल लज़ी बैनक व बैनहु अदावा, तो देखोगे जो तुम्हारे जानी दुश्मन है और रब ने कहा वो तुम्हारे जिगरी दोस्त बन जाएंगे। मुसलमानों, जरूरत है इन हालात में इस किरदार को अपनाने की, इस अखलाक को अपनाने की। आप मक्की जिंदगी को देखिए, मक्की जिंदगी में जहाँ सहाबा दोस्तों मक्के को छोड़कर जा रहे थे, वहाँ हज़रत अबू बकर ने भी फैसला किया कि चलो मक्का छोड़ते हैं और जाते हैं किसी ऐसी जगह जहाँ रब की बंदगी सुकून के साथ कर सके। जब हज़रत अबू बकर ने सामान उठाया, वहां मक्के के एक सरदार इब्ने दुगन्ना को पता चल गया कि अबू बकर मक्का छोड़ के जा रहे हैं। इब्ने दुगन्ना ने अबू बकर को पकड़ लिया, कहाँ अबू बकर कहाँ जा रहे हो? कहा इब्ने दुगन्ना जा रहा हूं किसी ऐसी जगह जहां सुकून के साथ अल्लाह की इबादत कर सकूं। तुम लोगों ने सुकून के साथ बंदगी का मौका तो दिया नहीं, जाता हूं किसी ऐसी जगह जहां अमन के साथ रब्बुल आलमीन की इबादत कर सकूं। इब्ने दुगन्ना ने कहा मिस्लु का या अबा बकर, मिस्लु का या अबा बकर, ला यखरुज वला युखरज। आय अबू बकर तेरे जैसा अजीम इंसान, आय अबू बकर तेरे जैसा आला अखलाक का हामिल इंसान, आय अबू बकर मैं तुझको मक्के से जाने नहीं दूंगा और न किसी की ताकत है तो तुमको मक्के से निकाले। कौन सी इबादत करना चाहते हो, कहां करना चाहते हो? मैं अपने दुगन्ना एक मक्के के सरदार की हैसियत से तुमको शख्सी बना देता हूं। कौन सी इबादत करना चाहते हो, कहां करना चाहते हो, करो। तुम न अपनी मर्जी से मक्का छोड़ सकते हो, न खुद तुम्हें कोई मजबूर कर सकता है मक्का छोड़ने पर। अय अबू बकर तुम मक्के के लिए एक अजीम सरमाया हो, तुम मक्के का एक कीमती सरमाया हो। मुसलमानों, जो आपको निकालने की बातें कर रहे हैं उस अखलाक के हामिल बन जाओ, उस किरदार के मालिक बन जाओ। जो आपको निकालने की बातें कर रहे हैं वही लोग आपके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं कि मत जाओ, आप हिंदुस्तान का अजीम सरमाया हो। मोहल्ले वाले कहें आपके बारे में कि हमारे मोहल्ले का कीमती सरमाया है ये मुसलमान, गली वाले कहें कि हमारे मोहल्ले का कीमती इंसान है ये इंसान, ये मुसलमान। मुसलमानों, उस किरदार को अपना लो, आला अखलाक रहोगे, इंशाअल्लाह हर मैदान को दोस्तों फतेह करोगे। ये ऐसा अखलाक दोस्तों, ऐसा हथियार है जिसका कोई तोड़ नहीं, कोई जवाब नहीं। एक और चीज दोस्तों मुसलमानों, इन हालात में मुसलमानों के लिए आपको एक और चीज मैं बताता हूं। जानते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया में हमारी हिफाजत के लिए रब्बुल आलमीन ने कुछ कवानीन बनाए और रब ने फरमाया जो मेरे दीन पर कायम है, मेरे दीन पर कायम रहकर मेरे दीन की तबलीग करते हैं, मेरे अहकामात को दुनिया वालों तक पहुंचाते हैं, इस्लामी तालीमात को फैलाते हैं, और रब ने फरमाया कि मैं उनकी हिफाजत करता हूं। मुसलमानों, यह आपका फर्ज मनसबी है, आपका फर्ज मनसबी है कि छोटी सी भी हदीस आपको याद हो तो आप दूसरों तक पहुंचाइए। आपकी कौमी जिम्मेदारी है, आप अपनी जिम्मेदारी को समझिए। ये मत कहिए कि हिंदुस्तान के हालात खराब हैं, अभी मैं इस्लाम का प्रचार करूंगा तो शक की नजरों में आऊंगा, हो सकता है कि मुझे जेल के पीछे जाना पड़े, जेल के हवाले कर दिया जाए। नहीं नहीं, मैं आपसे कहता हूं हिंदुस्तान के जो हालात हैं मक्के के हालात से खराब नहीं है। मक्के के हालात आप देखिए, मुसलमानों के लिए जीना दुश्वार कर दिया गया था, इस्लाम का नाम लेना भी मुश्किल था। उन हालात में मक्के के काफिर चाह रहे थे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी दावत और तबलीग की एक्टिविटी को कम करें, अल्लाह के रसूल अपनी दावत से बाज आ जाएं, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी हर मुसीबत, आपने उनके हर हमले के हौसले के साथ जवाब दिया, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी हर मुसीबत को बर्दाश्त करते हुए अपने चचा को तारीख की जवाब दिया था कि अगर ये मेरे एक हाथ पे सूरज और दूसरे हाथ पे चांद भी ला के रख दें, मैं अपनी दावत से बाज आने वाला नहीं। मुसलमानों, रब का ये वादा है कि अगर तुम मेरे दीन को फैलाओगे, मेरी तालीमात को दुनिया वालों तक पहुंचाओगे, तो मेरा वादा है कि तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनजिला इलैका मिन रब्बिक, बल्लिग मा उनजिला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफअल फमा बल्लगता रिसालता वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। ऐ नबी, जो भी वही आपकी तरफ की जाती है, इस वही को दुनिया वालों तक पहुंचाइए। अगर आपने ऐसा न किया तो नबूवत और रिसालत का जो फरीजा उसको कमा हक का वो आपने अंजाम न दिया। हाँ, इस वही को लोगों तक पहुंचाने में दुश्मनियां सामने आएंगी, अदावतें सामने आएंगी, लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, तब अल्लाह का आपसे वादा है कोई आपको छू भी नहीं सकता, कोई आपकी तरफ नजर उठा के भी देख नहीं सकता, कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मुसलमानों, इंशाअल्लाह रब की मदद आएगी, बस आप इस दीन को, इस्लाम के झंडे को लेकर आगे तो बढ़िए। आप देखिए रब की मदद किस हालत में नाज़िल हुई। आप तारीख में आता है कि ऐन उसी वक्त उन्हीं हालात में हजरत उमर ने इस्लाम कबूल किया। देखिए मुसलमान जब दीन का प्रचार कर रहे थे मक्के के इन दोस्तों नाजुक हालात में, और रब ने मदद किस हाल में नाजिल की, ऐन उन्हीं हालात में हजरत उमर ने इस्लाम कबूल किया। और इब्ने मसूद कहते हैं कि माज़िल्ना आइता मुन्ज़ु अस्लम उमर, कि हम मक्के में सर नीचा करके जी रहे थे, जब से उमर ने इस्लाम
हुआ, मक्के में मुसलमान सर उठाकर जीने लगे, मुसलमान सर उठाकर जीने लगे। मुसलमानों मक्के में उमर का इस्लाम कबूल टर्निंग पॉइंट की हैसियत रखता था। आप कुछ लोग गैर मुस्लिम हैं जो आपकी तरफ झुके हैं, आपकी तहजीब उन्हें अच्छी लगती है, आपकी आजान से उन्हें मोहब्बत है, आपकी इबादत को पसंद करते हैं, बस थोड़े से सहारे की जरूरत है। रब की आयतें दोस्तों उनको पढ़ के सुनाइए, जरा नम हो तो मिट्टी बड़ी जरखे जसा की, थोड़ी सी दोस्तों कोशिश करने की जरूरत है। इंशाअल्लाह ये दोस्तों जो चीज है दीन पर कायम रहकर, दीन पर कायम रहकर दोस्तों आप रब के दीन को फैलाएंगे इंशाअल्लाह दोस्तों, यही चीज आपकी हिफाजत की जामिन है। एक और चीज दोस्तों, हिंदुस्तान में जीने के लिए बहुत जरूरी है, यहाँ पर सर उठाकर जीने के लिए बहुत जरूरी है कि यहाँ के दोस्तों नौजवान यहाँ के कानून को पढ़ें, यहाँ की दस्तूर पर गहराई से नजर रखें। याद रखिए कुरान ये कहता है कि जहां रहो, जिस जगह रहो, वहां के कानून को पढ़ो। यही तभी से दोस्तों आप अपने हुकूक की लड़ाई लड़ सकेंगे। यहाँ के कानून को जानेंगे तब अपने अकीदो ईमान की हिफाजत कर सकेंगे। सूरह यूसुफ का आप पढ़िए दोस्तों, बड़े अजीम असबाक है सूरह यूसुफ के अंदर। वहां आप देखिए बिन्यामीन को अपने पास रोकना था। ये वाकया बताता है कि जहां रहो वहां के कानून को जानो। बिन्यामीन को अपने पास रोकना था, लेकिन मिस्र की हुकूमत उन्हें इजाजत नहीं दे रही थी, मिस्र का कानून इजाजत नहीं दे रहा था कि बिला किसी जुर्म आप बिन्यामीन को अपने पास रोकें। क्या का कुरान कहता है, मा कान लियाखुज़ा अखाहु फी दीनिल मलिक, एक पैमाना छुपा दिया बिन्यामीन के सामान में, एक पैमाना छुपाया। अब मिस्र का कानून भी यूसुफ को इजाजत देता है, अब मिस्र का कानून भी यूसुफ को इजाजत देता है कि बिन्यामीन को अपने पास रोक सकते हैं, क्योंकि वो एक मुजरिम है। उन्होंने जुर्म किया, पैमाना छुपाया, और रुसवाई उनकी मकसद नहीं थी, बस भाई को अपने पास रोकना था, बस मोहब्बत थी उनसे। देखिए कुरान कहता है जहां रहो वहां के कानून पर गहरी नजर रखो। कानून अगर पढ़ लोगे यहाँ का दोस्तों, सर उठाकर जियोगे, कोई दोस्तों डरने की जरूरत नहीं। कानून अगर जान लोगे हर कोई तुमसे डरेगा, कानून से नावाकिफ रहोगे दोस्तों हर कोई तुम्हें डराएगा। एक दोस्तों आखिरी चीज, हमारी तदबीरें अपनी जगह पर, हमारा एहतियात अपनी जगह पर, दुआएं करना न भूलिए। आपका दोस्त मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आजजुन्नास मन अजज़ा मिन दुआ, सबसे ज्यादा लाचार वो है जो दुआ करने से भी लाचार हो, सबसे ज्यादा आजिज वो जो दुआ करने से भी आजिज हो। मुसलमानों आपके दुआओं की सख्त जरूरत है, हिंदुस्तान के मुसलमानों को आपके दुआओं की सख्त जरूरत है, दुनिया के मुसलमानों को। इस वक्त पूरी दुनिया दोस्तों, मुसलमान पूरी दुनिया के जुल्म और सितम की चक्की में पीस रहे हैं। आपके हाथों की जरूरत है, आपके हाथों का इंतजार कर रहे हैं कि कब आसमान की तरफ उठे। ये दुआएं बड़ा असर रखती है मुसलमानों, आपका बेहतरीन और आखिरी हथियार है और मुअस्सिर हथियार है आपकी दुआ। देखिए जब बनु इसराइल के बारे में मूसा अलैहि सलाम ने देखा कि उन पे जुल्म हो रहा है, तो मूसा हारून ने दोनों ने मिलकर दुआ की बनु इसराइल के लिए कि अल्लाह फिरौन को जो तूने रौनक अता की है, जो माल और दौलत अता की है, इसी चीज को वो लेकर तेरे बंदों को तेरी राह से गुमराह कर रहा है। और रब्बना तमिस अला अमवालिहिम वशदुद अला कुलूबिहिम, आय अल्लाह तू इसके माल को बर्बाद कर दे, आय अल्लाह तू उसके दिल को सख्त कर दे। और कितना सख्त कर दे, इतना सख्त कर दे कि अजाब आने तक वो बेदार न होने पाए, अजाब आने तक वो बेदार न होने पाए। अब देखिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा जब परेशान होते थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह उनका नाम ले लेकर दुआएं करते थे उनकी भलाई के लिए, और जालिमों का नाम ले लेकर अल्लाह के रसूल की बर्बादी की दुआ करते थे। अब कुछ कमजोर मुसलमान मक्के में अपने ईमान की वजह से कहते मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कुनूत नाज़िला का एहतमाम किया, और आपने दुआ को हथियार कैसे बनाया, हथियार को चलाया कैसे है, और रब से आपने दुआ की अल्लाहुम्मा अंजिल वलीद इब्न वलीद, अल्लाहुम्मा अंजिल अय्याश इब्न रबिया, अल्लाहुम्मा अंजिल सलमत इब्न हिशाम, अल्लाहुम्मा अंजिल मुस्तज़अफीन मिनल मुमिनीन, अल्लाहुम्मा अस्तग़फ़रतक अला मुदर। ऐ अल्लाह सलमा बिन हिशाम मक्के में अपने ईमान की वजह से कह दे, ऐ अल्लाह से रिहाई दिला दे। ऐ अल्लाह अय्याश बिन रबिया अपने ईमान की वजह से मक्के में कह दे, ऐ अल्लाह से निजात दिला दे मक्के वालों से। अल्लाह कुछ कमजोर मुसलमान अपने ईमान की वजह से मक्के में कह दे, ऐ अल्लाह उन्हें रिहाई दिला दे। अल्लाहुम्मा अस्तग़फ़रतक अला मुदर, ऐ अल्लाह कबीर मुज़र के जो जालिम है, मुसलमानों पर बड़ा जुल्म ढाते हैं, उन पर तू अपनी पकड़ सख्त से सख्त कर दे। वक्त दोस्तों मेरे पास नहीं है। देखिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंबिया सारे अंबिया की आप दोस्तों तारीखें पढ़िए, उनकी सीरत पढ़िए, उन पर भी जब मुसीबत आई, उनकी कौम पर मुसीबत आई, उन्होंने दुआओं का सहारा लिया। लाख दोस्तों आपकी तदबीरें हो, लाख दोस्तों कामयाबी आपको सामने नजर आ रही हो, लेकिन दुआएं करना न भूलिए। देखिए गज़वे बदर में फरिश्तों ने पहले ही बता दिया कि फतेह मुसलमानों की होगी, कामयाबी मुसलमानों की है। लेकिन देखिए हज़रत उमर खुद कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने गज़वे बदर के मैदान में हमें कह दिया हाज़ा मसरा फलान
मतलब इंशाअल्लाह कि कल अबू जहल की लाश यहाँ होगी, उतबा की लाश यहाँ होगी। कामयाबी सामने है और कोई ढका छुपा दोस्तों इशारा नहीं था, बल्कि वाज़ेह अल्फाज में क्लियर मैसेज दे दिया वही ने कि मुसलमानों की फतेह होगी, मुसलमान जीतेंगे कल की जंग। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की हालत देखिए, रात में गज़वे बदर के मैदान में आते हैं और किबले की तरफ मुंह करके मोहम्मद रसूलुल्लाह ज़ारों के तार रो रहे हैं, ज़ारों के तार रो रहे हैं और दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा अंजिज़नी मा वअदतनी, अल्लाहुम्मा अंजिज़नी मा वअदतनी, अल्लाहुम्मा आति मा वअदतनी, अल्लाहुम्मा हादी लसादा फलम तुबत फिल अर्द। ऐ अल्लाह, जो तूने वादा किया है मदद का, ऐ अल्लाह वो घड़ी आ चुकी है। ऐ अल्लाह, जो तूने वादा किया है मदद का वो घड़ी आ चुकी है। हजरत अबू बकर कहते हैं कि इतना रो रहे हैं और रब की तरफ इस कदर मुतवज्जे हैं कि बार बार आपकी चादरें मुबारक गिर रही है कंधे से, बार बार हजरत अबू बकर उठाकर कंधे पर रख रहे हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहे हैं, ऐ अल्लाह, ये मुट्ठी भर जमात आज ये हलाक हो गई तो फिर इस जमीन पर कोई तेरी इबादत करने वाला नहीं होगा। ऐ अल्लाह, इनकी मदद फरमा। हजरत अबू बकर पीछे से चिमट जाते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल, कफा का मुनाशदत कर रब्बुक, ऐ अल्लाह के रसूल क्यों इतनी गिरिया उजारी कर रहे हैं? क्लियर मैसेज तो मिल गया वही इलाही की तरफ से, ऐ अल्लाह के रसूल क्यों इतना रो रहे हैं? अल्लाह आपको बेसहारा नहीं छोड़ेगा, अल्लाह आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। ऐ अल्लाह के रसूल, कामयाबी हमें हमारा ही कदम चूमेगी। क्लियर मैसेज मिलने के बाद कामयाबी सामने नजर आ रही है दोस्तों, तब भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआओं को नहीं छोड़ा, तब भी आपने दुआओं का सहारा लिया। मुसलमानों, जरूरत है हम दुआएं करते रहे, करते हैं। देखिए, हमारा ये नजरिया बड़ा गलत है कि दुआएं कर रहे हैं, रब की मदद क्यों नहीं आ रही है? दोस्तों, रब की मदद बड़े दोस्तों इंतजार की बात आती है। इन हालात में रब्बुल आलमीन हमें हमारा सब्र देखना चाहता है, सब्र की इबादतें करवाना चाहता है। और रब की मदद कैसे आती है दोस्तों? हमारे सब्र का इम्तिहान लेने के बाद आती है। आप दुआएं करते रहिए, इंशाअल्लाह इन दुआओं का असर आप नहीं तो आपकी नस्लें जरूर देखेंगी। मूसा व हारून ने दुआ की, रब्बुल आलमीन ने क्या कहा? काला कद उजीबत दावतुकुमा फस्तकीमा वला तत्तबिआनी सबीलल लदीना ला यालमून। ऐ मूसा व हारून, तुम्हारी दुआ तो कबूल हो गई, अब जो तुम्हारी दावत है रब के दीन पर डटे रहो, जमे रहो और इंतजार करो कि तुम्हारी दुआएं रंग कब लाती है, इंतजार करो कि तुम्हारी दुआएं कब असर दिखाती हैं। या मुफस्सिरीन ने एक नुक्ता जिक्र किया कि मूसा व हारून की दुआ और फिरौन की हलाकत में 40 साल का फासला है। कितना? 40 साल का फासला है। एक नबी को 40 साल इंतजार करना पड़ सकता है। याद मुसलमानों, सोचो कि हमारा इंतजार और तवील हो सकता है, हमें और इंतजार करना पड़ सकता है। आप दुआएं कीजिए, इंशाअल्लाह आपकी दुआओं का असर आप नहीं तो आपकी नस्लें देखेंगी। एक और बात दोस्तों, मोहम्मद